السلام علیکم، لاہور نیوز کے ساتھ میں ہوں محروق خالد اور میں ہوں اسامہ بن عبید۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیلات کی طرف بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں ماڈل ٹاؤن میں قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوگ میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ ہے کہ ہم سنبھل جائیں اور ہم اپنے اعمال کو درست کریں اور اس راستے کو اختیار کریں کہ جس میں اللہ کی رضا ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس وقت جو ہماری تہذیب جس کی فکری، اخلاقی، تمدنی، سیاسی اور معاشی بنیادیں بالکل ایک تباہی کا منظر پیش کر رہی ہیں اور پوری دنیا پر جو نظام اور تہذیب غالب ہے اس کی 4 بنیادی چیزیں ہیں۔ سیکولرزم ہے، لادینیت ہے اور دنیا پرستی ہے۔ نیشنلزم ہے، قوم پرستی ہے اور قوم کو طبقات میں تقسیم کر کے شر اور فساد کو پھیلانا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صبح ہونے والی بارش نے اسموگ کی کمر توڑ دی۔ زہریلی دھند میں کمی سے اہل لاہور کے چہروں پر خوشی۔ محکمہ موسمیات کا آئندہ 24 گھنٹوں میں بارش کا امکان۔ میڈیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد ہسپتالوں کے آؤٹ ڈور میں مریضوں کی کمی ہو گئی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز سجاد حسین سے۔ سجاد، آگاہ کیجیے۔ جی بالکل، آج صبح ہونے والی بارش نے جو ہے وہ اسموگ کی کمر توڑ دی ہے اور مریضوں کی تعداد جو ہے وہ ہاسپٹلوں میں کم ہو گئی ہے۔ اس سے قبل اسموگ ایئر کوالٹی انڈیکس کی بات کی جائے تو لاہور کے اندر ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 سے تجاوز کر گیا تھا، جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں نہ صرف پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ لاہور آلودگی میں پہلے نمبر پر شمار ہو رہا تھا۔ لیکن اگر آج کی بات کی جائے تو آج کی بارش کے بعد پاکستان کے اندر جو ہے وہ لاہور تیسرے نمبر پہ آلودہ ترین شہر ہے، جبکہ پوری دنیا کی بات کی جائے تو پوری دنیا میں اس وقت اس کا 11واں نمبر آ رہا ہے۔ ایئر کوالٹی انڈیکس کے کم ہونے کے باعث جو ہے وہ شہریوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ ہلکی ٹھنڈ کا آغاز ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اسموگ کم ہو گئی ہے۔ اسموگ کم ہونے کی وجہ سے بچے، بوڑھے، خواتین سب جو ہیں وہ بیماریوں سے ان کو نجات مل گئی ہے اور آئندہ چند دنوں تک جو ہے وہ یہی میڈیکل ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ چند دنوں تک جو ہے وہ اسموگ سے چھٹکارا رہے گا، جس کے باعث جو ہے لاہور کے بڑے ٹیچنگ ہاسپٹل کے اندر مریضوں کی تعداد جو ہے وہ کم رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اب اسموگ بارش ہو گئی ہے، اسموگ میں کمی آ گئی ہے، لیکن آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران جو ہے وہ بارش کا مزید امکان ہے اور مزید بارش برسنے سے جو ہے وہ اسموگ مزید کم ہوگی اور اگر بارش نہ ہوئی تو اس حوالے سے اسموگ آہستہ آہستہ پھر بڑھے گی اور اسموگ سے جو ہے وہ بچنا شہریوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب بھی گھر سے نکلیں منہ میں ماسک لیں، آنکھوں پہ چشمہ لیں اور جب گھر واپس آئیں تو ضروری ہے کہ آپ نمک سے اور ڈسپرین پانی، نیم گرم پانی سے جو ہے وہ غرارے کیے جائیں تاکہ اسموگ کے باعث نزلہ، زکام، بخار اور گلے کی بیماری سے بچا جا سکے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ سجاد حسین۔ موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں نے انارکلی فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا۔ کوئی دوستوں کے ساتھ تو کوئی فیملیز کے ساتھ فوڈ اسٹریٹ کھانا کھانے پہنچا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بارش سے موسم خوشگوار ہوا تو ہم نے بھی باہر سے کھانے کا پروگرام بنایا۔ تفصیلات جان لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد اسامہ سے۔ جی اسامہ، بتائیے۔ اس وقت میں انارکلی فوڈ اسٹریٹ میں موجود ہوں۔ یہاں پہ شہریوں کا رش دیکھا جا رہا ہے کیونکہ موسم خوشگوار ہو گیا۔ رات گئے جو بارش ہوئی، آج دن بھی بارش چلتی رہی جس کی وجہ سے گرمی مکمل طور پہ ختم ہو گئی، سردیاں آ گئیں، تو شہریوں نے اس موسم سے لطف اٹھانے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے انارکلی کا رخ کر لیا، فوڈ اسٹریٹ کا رخ کر لیا اور دوستوں کے ساتھ یہاں پہ لوگ آ گئے تو کوئی فیملی کو لے کے یہاں پہ باہر کھانے کے لیے پہنچ گیا۔ اس وقت بھی کچھ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بھائی، الحمدللہ موسم بڑا پیارا ہوا ہے۔ تقریباً 1 ماہ ہو گیا تھا بارش نہیں ہوا تھا لاہور میں، تو آج صبح صبح بارش ہو گئی اور بڑا خوشگوار موسم ہے۔
तो हम हॉस्टल में बहुत बोर हो रहे थे, हमने सोचा कि बाहर आते हैं, आज खाना खाते हैं बाहर, तो काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। अच्छा ये बताएं कि आप कहाँ से आए हैं और यहाँ हॉस्टल में रहते हैं, दोस्तों के साथ यहाँ पे आ जाए हुए खाना खाने? बेसिकली मेरा बिलोंगिंग है गिलगित बल्तिस्तान से, हुंजा से मेरा बिलोंगिंग है, और मैं पढ़ने के लिए मैं लाहौर आया हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज में मैं पढ़ता हूँ, और मैं यहाँ आज कढ़ाई खाने के लिए आया हूँ लाहौर, तो बड़ा अच्छा मज़ा आ रहा है। एक और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ फैमिली भी है, इस हवाले से उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, फैमिली को लेके आप बाहर खाने का प्लान बनाया हुआ है, मौसम खुशगवार है, तो क्या फील कर रहे हैं? बिल्कुल बहुत अच्छा मौसम है, काफ़ी दिनों बाद ये मौसम आया है, सर्दी नई सर्दी शुरू है, उस वजह से बहुत अच्छा मौसम है। इस वजह से बच्चों के साथ बाहर आज निकलें और साथ में खाना वगैरह भी खाएंगे और घूमेंगे भी। जी बिल्कुल, शहरी जो हैं वो खुशी का इजहार कर रहे हैं क्योंकि मौसम अच्छा हो गया, जिसकी वजह से इस मौसम से लुत्फ़ उठाने के लिए शहरी अनारकली फूड स्ट्रीट का रुख कर रहे हैं। किसी ने चिकन कढ़ाई खाने का इरादा किया हुआ है, तो कोई बारबेक्यू से हाथ साफ़ करने का इरादा रखता है, और यहाँ शहरियों की इंजॉयमेंट जारी है। जी आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में बारिश ने स्मोक को पिछले कदमों पर धकेल दिया है। बारिश के बाद शहर में तशवीशनाक हद तक बढ़ जाने वाले औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में काबिल इत्मीनान कमी आ गई है। बारिश के बायस खुनकी में भी इजाफा हो गया। स्मोक ने कई हफ्तों से लाहौर में अपने पंजे पूरी मजबूती से गाड़े हुए थे, जिसके बाद सांस और आंखों के इन्फेक्शन के अमराज में भी में आया। सूरत हाल की संगीनी के पेश नजर हुकूमत पंजाब को तालीमी और सरकारी इदारों में छुट्टियों का भी ऐलान करना पड़ा। इस दौरान कई एक मौके पर शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 की इंतहाई तशवीशनाक सतह से भी तजावुज कर गया। इन हालात में सबकी नजरें आसमान पर जमी हुई थी कि बारिश ही सूरत हाल में बेहतरी का वाहिद जरिया है। बिलाखिर इंतजार खत्म हुआ और बादल बरसने से स्मोक की शिद्दत में भी नुमाया कमी आ गई। बारिश के बाद शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 125 की काबिल इत्मीनान हद तक नीचे आ गया, जिस पर सभी ने सुख का सांस लिया। बारिश के बाद खुनकी में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। लाहौर पुलिस और सेफ सिटीज अथॉरिटी की बड़ी कामयाबी, जापानी खातून से फ्रॉड करने वाले मुलजिमान गिरफ्तार। सेफ सिटी कैमरे की मदद से 2 मुलजिमान को गुलबर्ग से गिरफ्तार किया गया। मुलजिमान के कब्जे से गैर मुल्की खातून की रकम बरामद। तफसीलात जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर हुसैन, बताइएगा इस गिरफ्तारी के हवाले से। बिल्कुल, लाहौर पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी ने यह कार्रवाई की है। जापानी खातून से फरार करने वाले मुलजमान को चंद घंटों बाद ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन टीम ने सेफ सिटी कैमरों की मदद से मुलजमान को ट्रेस किया। सेफ सिटी कैमरों की निशानदेही पर 2 मुलजमान को गुलबर्ग लाहौर से गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के कब्जे से गैर मुल्की खातून की रकम बरामद कर ली गई है। इस वजह से ASP शहरा बानो का कहना है कि गिरफ्तार मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद जो तफ्तीश है वो की जा रही है। तहम तर्जमान सेफ सिटी का इस हवाले से कहना है कि शहरी किसी भी इमरजेंसी की सूरत में 15 पर अतला कर सकते हैं, ताकि मुतासरा शहरी की जो है वो बर वक्त जो है वो मदद की जाए। मुदस्सिर, इस वाक़े की तफसीलात के हवाले से बताइए कि मुलजिमान ने इस खातून के साथ कैसे ये सारा काम किया, और दूसरा ये भी बताइएगा कि मुलजिमान के खिलाफ किस दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बिल्कुल, फ्रॉड की दफात के तहत जो है वो मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। जापानी खातून से जो है वो फ्रॉड करके जो है वो जो मुलजमान थे वो उनको फरार हुए, जिसके बाद पुलिस ने जो है वो कैमरों की निशानदेही पर उनको गिरफ्तार किया था। पुलिस का ये कहना है कि जो मुलजमान हैं इनसे मजीद जो तफ्तीश का अमल है वो जारी है। तफ्तीश के बाद जो मजीद हक़ाइक़ हैं वो सामने मुदस्सिर, ये भी बताइए क्या मुलजिमान रिकॉर्ड याफ्ता है? सामने नहीं आ सकती है, और पुलिस का ये कहना है कि तफ्तीश की जा रही है। तफ्तीश के बाद इस तरह सामने आएंगे कि ये मुलजमान जो थे वो रिकॉर्ड याफ्ता थे या इन पर जो पहले ही मुकदमा जो है वो दर्ज है या नहीं है। ये जो फ्रॉड की दफात होती हैं इसका जो है वो नाक़िस दफात होती हैं। इसमें जो पुलिस का कहना है कि जो दफात है वो इजाफी शामिल की जाएंगी। 392 या 380 जो चोरी की दफात है वो इसमें शामिल की जाएंगी, ताकि जो मुलजमान हैं उनकी जो है वो अदालत से बेल जो है वो जल्दी ना हो और उनको जो है वो अदालत से साइन मिल सके। अगर फ्रॉड के तहत मुकदमा दर्ज किया गया तो वो मामूली सी दफात होती है, जिससे मुलजमान को जो है वो बड़ी आसानी से अदालत से राही पा जाते हैं। तो इस वाले से कहना है कि तफ्तीश के बाद जो है वो तमाम जो मराहिल हैं वो मुकम्मल होंगे, और उसके बाद जो है वो उसका चालान तैयार करके मुलजमान को अदालत से साथ दवाई जाएगी। जी, आपका शुक्रिया मुदस्सिर। लाहौर की ताजर बरादरी इंतजामिया के रवैये पर शदीद बरहम, कहते हैं निगरान वज़ीर आला के हुक्म पर मार्केटें खोली, हुकूमती इजाज़त के बावजूद ताजरों को हिरासा और ज़ोर ज़बरदस्ती करना किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। स्मोक छट चुकी है, हफ्ते के रोज़ कारोबार की इजाज़त देने का मुतालबा करते हैं।
स्मार्ट लॉकडाउन पर इंतजामिया और ताजरों के दरमियान चपकलिश। लाहौर प्रेस क्लब में मरकजी चेयरमैन सुप्रीम कौंसिल अल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान नईम मीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इंतजामिया के साथ जुमेरात और जुमा को कारोबार करने और हफ्ता इतवार को मार्केटें बंद करने पर इत्तेफाक हुआ। इस हवाले से निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के भी वाज़ेह अहकामात। इसके बावजूद पुलिस की जानिब से ताजरों के घरों पर छापे, उनको हिरासा करने और जबरदस्ती दुकानें बंद कराने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हमारे शालमी मार्केट के ताजर के साथ पुलिस गर्दी भी की गई हमारे सदर उमर जावेद भट्ट साहब के साथ रात के 12:30-1 बजे, और हमें कहा गया कि अभी आप इत्तलात करें कि सुबह मार्केटें बंद होंगी। हमने कहा जी कि ये मुमकिन नहीं है, इसका बाकायदा हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया है। बारकैफ सुबह जब हम अपनी मार्केटों में पहुँचे तो हमसे पहले पुलिस पहुँच चुकी थी। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर और दीगर ताजरों ने कहा कि डंडों के जोर पर हमारे वर्कर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स को गिरफ्तार किया गया। हम वज़ीर आला के हुक्म पर दुकानें खोल रहे थे, लेकिन पुलिस ने क्या किया। आज का वाक़या अफसोसनाक है। वज़ीर आला तहकीकात कराएं। स्मोक छट चुकी, अब लॉकडाउन पर नजरसानी करें। हमारे दुकानदारों को जबरदस्ती उठाया गया और दुकानें बंद करवाई गई हैं। मैं उसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। उनको थोड़ा सा सोच के फैसला करना चाहिए कि जब वो हमसे तय कर लेते हैं तो उस पर अमल भी होना चाहिए। जो इंतजामिया कर रही है इस पर नोटिस लिया जाए, ताजरों को बेजा तंग ना किया जाए। ताजर रहनुमाओं ने घरों पर पुलिस छापों की तहकीकात करा के जिम्मेदारान को करार वाकई सजा देने का मुतालबा किया। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने शहर के कई इलाकों में मार्केटें और दुकानों को ज़बरदस्ती बंद कराने का नोटिस ले लिया है। कहते हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से 10 नवंबर को मार्केटें और दुकानें बंद कराने का कोई हुक्मनामा जारी नहीं हुआ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि हुकूमती इक़दामात और फिर बारिश के बाद स्मोक में नुमाया कमी आई है। वज़ीर आला ने कहा कि ताजिर बरादरी के ताउन पर ज़ाती तौर पर और पंजाब हुकूमत की जानिब से शुक्रिया अदा करता हूँ। स्मोक से निमटना एक कौमी ज़िम्मेदारी है और हमने लाहौर और अपने शहरों को रहने के काबिल बनाना है। इस ज़िम्न में हुकूमती इक़दामात का साथ पूरे मुआशरे को देना होगा। उन्होंने कहा कि स्मोक की वजह से सिर्फ हफ्ता 11 नवंबर मार्केटें बंद करने का फैसला किया गया है। मौसम बदल गया, डेंगू मच्छर के तेवर नहीं बदले। शहर में डेंगू के मजीद 83, सुबह भर में 219 मरीज सामने आए। नवा साल लाहौर में डेंगू कन्फर्म मरीजों की तादाद 4868 हो गई। डेंगू मच्छर के वार मजीद शहरी बीमार। शहर में डेंगू बुखार का जोर बरकरार है। लाहौर में 24 घंटों के दौरान 83 नए मरीज सामने आए। सूबे भर में 219 नए मरीजों में डेंगू बुखार की तस्दीक हुई। गुजरांवाला में 41, फैसलाबाद 28, रावलपिंडी 24, मुल्तान में 23 नए मरीज रिपोर्ट हुए। इसी तरह साहिवाल में 4, सियालकोट और बिहाड़ी में 3-3 मरीज सामने आए। रमासा लाहौर में डेंगू के कन्फर्म मरीजों की तादाद 4868 हो गई। लाहौर के अस्पतालों में इस वक्त डेंगू के 91 मरीज जेरे इलाज हैं। पंजाब भर के अस्पतालों में डेंगू के 146 मरीज दाखिल हैं। सेक्रेटरी सेहत अली जान खान का कहना है कि डेंगू से बचने के लिए शहरी अपने खबर शामिल करें। साबिक वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह ने कहा है कि नून लीग निगरान हुकूमत में शामिल है। लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे हो सकती है? पीपल्स पार्टी किसी से इत्तेहाद नहीं करेगी। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह की लाहौर आमद। पार्टी रहनुमा नवीद चौधरी और सोनिया खान के घर गए। खुर्शीद शाह ने नवीद चौधरी से उनकी अहलिया जबकि सोनिया खान से उनकी वालदा की वफात पर ताज़ियत की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सैयद खुर्शीद शाह का कहना था कि पीपल्स पार्टी पंजाब में सरप्राइज दे सकती है। पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो इत्तेहाद बन रहे हैं इसके पीछे कोई ताकत नहीं, ये खुद ही बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि सिलेक्शन इस मुल्क के लिए मौत है। इलेक्शन पंक्चर किए गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा। फेयर एंड फ्री इलेक्शन में लोग आए, अपना व्यूज दें, प्राइम मिनिस्टर पे कोई ऑब्जेक्शन न हो, पंचर इस मुल्क में रात को न लगे और सिस्टम न बैठ जाए, तो मैं समझता हूँ तो हमारी इकानमी बेहतर हो सकती है। अगर ये सिलेक्शन की इन लोगों ने फिर गलती की तो फिर पाकिस्तान के लिए मुझे अफसोस करना पड़ता है कि जिस तरीके से आज हमारी पोजीशन है, हम फ़लस्तीन के मसले पे भी नहीं बोल सकते, ऐसे ही अपने मसले पे भी नहीं बोल सकते। नवाज शरीफ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में खुर्शीद शाह ने कहा कि 4 दिन जेल जाने से सियासतदानों का कद बढ़ जाता है, लेकिन ऐसा न करके नवाज शरीफ का कद छोटा हुआ है। हम नवाज शरीफ की तरह रेड कारपेट नहीं, सिर्फ शफाफ इलेक्शन चाहते हैं। अगर मियाँ पहले भी कभी नहीं हुआ था कि हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार जो है वो एयरपोर्ट में जाए और फिर जाके थंब ले और फिर जाके जाए, तो ये जो मियाँ साहब कर रहे हैं, मुझे मियाँ साहब के लिए बड़ी इज़्ज़त और एहतराम है और ख्वाहिश भी है कि वो सियासतदान नज़र आए।
تو اس طریقے سے وہ چھوٹا سا بن جاتا ہے، چھوٹا، بالکل چھوٹا۔ خورشید شاہ نے کہا کہ آصف زرداری خاموش نہیں، ڈٹ کر بول رہے ہیں۔ کیمرہ مین فیصل کے ساتھ محمد یاسین، لاہور نیوز۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ پاکستان کے اندر کسی بھی سطح پر مسلح جارحیت کی اجازت نہیں۔ پاکستان کے عوام اور ریاستی اداروں پر حملے غیر شرعی ہیں۔ OIC اجلاس میں پاکستان فلسطینیوں کی آواز بنے گا۔ رپورٹ کریں گے راہیل علی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اور چیئرمین علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے بحریہ ٹاؤن مسجد میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ ریاست مخالف عناصر کے خلاف کارروائیاں ہونی چاہیے۔ ملک میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج اپنی جانیں قربان کر کے ملک کا دفاع کر رہی ہے۔ پاکستان کے عوام اور ریاستی اداروں پر حملے غیر شرعی ہیں۔ گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حملوں میں اضافہ ہوا۔ ہمارے فوج کے جوان اپنی شہادتیں خواہ وہ خیبر پختونخوا میں ہوں، خواہ وہ بلوچستان میں ہوں، خواہ وہ پنجاب میں ہوں یا سندھ میں ہوں، وہ اپنی شہادتیں دے کر پاکستان کی بنیاد کو اور پاکستان کے امن اور استحکام کو مضبوط بنا رہے ہیں۔ علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ پوری امت مسلمہ کی نظریں OIC کے اجلاس پر ہیں۔ دعا ہے کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جو فلسطین کے مسلمانوں کے زخموں پر مرہم ثابت ہو۔ پوری مسلم امہ اور عالمی دنیا کی نظریں ریاض کی طرف لگی ہوئی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اور ہماری توقع ہے اور ہماری خواہش ہے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ریاض سے ہماری مسلم قیادت کو ایسا فیصلہ کرنے کی توفیق دے جس سے مسلم امہ کے یہ جو زخموں سے خون بہ رہا ہے اس پر صرف مرہم پٹی نہ ہو بلکہ اس کا مستقل حل نکلے۔ فلسطینیوں کو ایک آزاد خود مختار ریاست ملے جس کا دارالخلافہ القدس ہو۔ علامہ طاہر اشرفی کا کہنا تھا کہ پاک فوج دشمنوں پر نظر نہ رکھے تو آج ملک میں لیبیا اور یمن جیسے حالات ہوں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کا میو ہسپتال کا دورہ پر اثر رہا۔ 2.5 سال سے خراب لیڈی ایچسن سڑک کی سنی گئی ہے۔ سڑک کو فوری طور پر کارپیٹ کروانے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ 2.5 سال سے تعمیر کے منتظر لیڈی ایچسن ہسپتال روڈ کی سنی گئی۔ نگران وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید لیڈی ایچسن ہسپتال روڈ پر پہنچے۔ MO انفراسٹرکچر میاں ثاقب نے بریفنگ دی۔ ایڈمنسٹریٹر لاہور رافیہ حیدر نے سڑک کو فوری طور پر کارپیٹ کروانے کا حکم دے دیا۔ چیف کارپوریشن آفیسر اقبال فرید کا کہنا ہے کہ سڑک کی تعمیر کے لیے ریٹس دوبارہ لگانے کے احکامات دے دیے ہیں۔ 10 روز میں سڑک تیار ہوگی۔ یہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ 10 دنوں میں اس کو اسفالٹ کر دیا جائے، لیکن ان دا مین وائل CM صاحب نے کہا ہے اس کو RCC کیا جائے۔ اب ہم اس کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ RCC کرنا بہتر ہے، یہ ہم میٹنگ کریں گے ایڈمنسٹریٹر سے اور کوشش ہے کہ 10 دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کی روڈ کی ہم تعمیر مکمل کر سکیں۔ MO انفراسٹرکچر میاں ثاقب کا کہنا ہے کہ میٹروپولیٹن کارپوریشن نے روڈ کٹ کا تخمینہ 2 کروڑ لگایا۔ تخمینہ واسا کو بھجوا دیا گیا تھا مگر واسا نے رقم ریلیز نہ کی۔ پبلک کی ڈیمانڈ پہ اور لوگوں کی تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے MCL کے فنڈ سے یہ پروجیکٹ لانچ کر دیا اور اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ 2.5 سال کے بعد 600 میٹر لمبی روڈ کا تخمینہ 2 کروڑ سے بڑھ کر 4 کروڑ ہو چکا ہے۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ منشیات کے مکروہ دھندے میں ملوث افراد معاشرے کا ناصور ہیں۔ صوبائی دارالحکومت میں بجلی چوروں کے خلاف بھی بلا امتیاز کریک ڈاؤن جاری ہے۔ قانون شکن عناصر کسی رعایت کے مستحق نہیں ہیں۔ لاہور پولیس بجلی چوروں اور منشیات فروشوں کے خلاف متحرک سربراہ لاہور پولیس بلال صدیق کمیانہ کا کہنا ہے کہ رواں سال بجلی چوری کے 18,107 جبکہ منشیات فروشی کے 9,360 مقدمات درج کیے گئے۔ اقبال ٹاؤن ڈویژن میں بجلی چوری کے 3,338، صدر میں 3,183 مقدمات درج کیے گئے۔ کینٹ میں 4,256، ماڈل ٹاؤن میں 2,392 مقدموں کا اندراج ہوا۔ سٹی ڈویژن میں 3,618 جبکہ سول لائنز میں 1,320 مقدمات درج کیے گئے۔ اقبال ٹاؤن ڈویژن میں منشیات فروشی کے 1,371، صدر میں 1,179 مقدمات درج کیے گئے۔ کینٹ میں 2,029، ماڈل ٹاؤن میں 1,791 مقدموں کا اندراج ہوا۔ سٹی میں 1,984 جبکہ سول لائنز میں 1,006 مقدمات درج کیے گئے۔ منشیات فروشی میں ملوث گرفتار ملزمان کے قبضے سے 5,921 کلو سے زائد چرس، 147 کلو سے زائد ہیروئن، 50 کلو سے زائد آئس جبکہ 1,39,860 لیٹر شراب برآمد کی گئی۔ CCPO لاہور بلال صدیق کمیانہ نے پولیس کو لیسکو اور ضلعی انتظامیہ کے ساتھ مل کر بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کی ہدایت کی۔
आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं पुलिस फोर्स की नफ्सियाती प्रोफाइलिंग का अमल तेज़ी से मुकम्मल किया जा रहा है। किसी भी नफ्सियाती आर्जे के शिकार एहलकारों को हर मुमकिन सपोर्ट फ्राहम की जा रही है। पंजाब पुलिस के अंदर टफ ड्यूटी आवर्स, कंसिस्टेंट या परसिस्टेंट बीमारियां, मेंटल हेल्थ इश्यूज, एक फैमिली जिसमें नौकरी ख़त्म हो जाए, उसके प्यारे प्यारे बच्चों का क्या बनता है, ये सारे बातें दोबारा जहन में लाइए और एक शख्सियत को जहन में लेकर आइए, शाहिद जाट। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से कांस्टेबल शाहिद जट की मुलाकात। आईजी पंजाब ने शाहिद जट से खैरियत, इलाज, मुआलजे और ड्यूटी बारे दरियाफ्त किया। मुलाकात में शाहिद जट के 3 बेटे और बेटी भी मौजूद थी। आईजी पंजाब की शाहिद जट के बच्चों से तालीम बारे गुफ्तगू, इजहार शफकत किया। शाहिद जट ने बेहतरीन इलाज करवाने पर आईजी पंजाब का शुक्रिया अदा किया। आईजी पंजाब ने शाहिद जट से पेशा वराना फ़राइज़ की अदायगी और कांस्टेबलरी के मुश्किलात बारे भी दरियाफ्त किया। ये बताओ कि जब ये गलत किस्म की वीडियो रिलीज कर दी और लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, मेरा भी मजाक उड़ाते हैं, तो आपके फादर की भी तस्वीर मेरे साथ लगाते हैं, कभी पापड़ के कवर पे, कभी कहीं, आपको कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता। तो फिर उनको क्या पैगाम देंगे आप? आईजी पंजाब का कहना है कि पुलिस फोर्स हेल्थ वेलफेयर के सिलसिले में नफ्सियाती प्रोफाइलिंग का अमल तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। स्ट्रेस, बाइपोलर डिसऑर्डर और किसी भी नफ्सियाती आर्जे का शिकार एहलकारों को इलाज, मुआलजे में हर मुमकिन सपोर्ट फराहम की जा रही है। पुलिस एहलकारों को दौरान ड्यूटी बेहतरीन माहौल और सहूलियात की फराहमी के लिए हर मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। हमारे 50+ कांस्टेबल्स ऐसे मिलकर जो स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी सर उठाती है और हम उनका इलाज करा रहे हैं। हमने सिर्फ 45% अपनी फोर्स की साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग की है, क्योंकि ये लंबा प्रोसेस है। कांस्टेबल शाहिद जट और उसके बच्चों को सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा भी करवाया गया। एआईजी एडमन अमारा अतर और एसएसपी एडमिन लाहौर आतिफ नजीर समेत दीगर अफसरान भी मौजूद थे। मार्केट में गंदम महंगी, चक्की मालिकान ने भी आटे की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया। चक्की आटे की कीमत 172 रुपये से बढ़कर 175 रुपये, 10 किलो आटे का थैला 1480 रुपये में फ़रोख्त होने लगा। लाहौर आटा चक्की ओनर एसोसिएशन ने चक्की आटे की कीमत में 3 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया, जिसके बाद कीमत 175 रुपये फ़ी किलो हो गई। ज़राए के मुताबिक सरकारी गंदम पर कीमत की अदम दस्तयाबी पर आटे की कीमत में इजाफा हुआ। मार्केट में 4800 रुपये वाली गंदम की बोरी बढ़कर 5300 रुपये की हो गई। आटे की कीमत में मज़ीद इजाफा मुतवक्के। गैस की कीमतें तो बढ़ गईं, मगर सार्फिन के मसाइल जूं के तूं हैं। सर्दी की आमद के साथ ही शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस नायाब हो गई है। दिल मोहम्मद रोड, वली स्ट्रीट के रिहायशी गैस को तरस कर रह गए हैं। गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफा, मगर गैस दस्तयाब ही नहीं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश और कम प्रेशर की शिकायत बढ़ने लगी। मौसम सरमा के आगाज पर ही सुई गैस सारिफीन सर पकड़ कर बैठ गए। दिल मोहम्मद रोड, वली स्ट्रीट से गैस गायब। शहरी बाजार से नाश्ता और खाना लाने पर मजबूर हैं। कुछ रिहायशी LPG पर गुजारा कर रहे हैं। इलाका मकीनों का कहना है कि दिन भर गैस का इंतजार रहता है। गैस आ भी जाए तो कम प्रेशर के बायस चाय बनाना भी मुश्किल होता है। हर माह गैस का बिल भी अदा कर रहे हैं और LPG भी खरीदने पर मजबूर हैं। बहुत घट आवाज है, किसी टाइम गैस रात को 8 बजे बंद हो जाती, कोई 9 बजे बंद, कोई टाइम नहीं गा। सुबह आती नहीं आती, थोड़ी जी गैस है बाकी करके चाह पकनी मुश्किल हो जाती है। प्रेशर का मसला है, गैस सुबह के टाइम आती है और बिल्कुल उसका प्रेशर कम होता है। नाश्ता बनाने में भी मसला होता है, जब बंदा उठता है उतनी देर में गैस चली जाती है। दोपहर में भी टाइमिंग है, यहाँ तो हमें बता दिया जाए कि टाइमिंग का हिसाब। अभी मौसम सरमा का जो है ना टाइमिंग शेड्यूल नहीं बताया गया। अहले इलाका ने मजीद कहा कि गैस की कीमतों में तो इजाफा कर दिया गया, मगर गैस प्रेशर नहीं बढ़ाया गया। सोई नॉर्दर्न इंतजामिया मामले का नोटिस ले। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। हुकूमत ने गैस के निर्ख 172% जबकि बिजली 40 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी किया। सार्फिन को 1 नवंबर से ही अदा करना होगा। IMF कर्ज की किस्त मिलने की राह में हायल एक और रुकावट दूर। गैस का जोरदार धमाका, बिजली का भी झटका। गैस 172% महंगी, बिजली बिल भी 40 पैसे फी यूनिट बढ़ गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 100 से 300 मुकाब मीटर गैस के इस्तेमाल पर बिल में 600 रुपए से 1900 रुपए का इजाफा होगा। बल्क कंज्यूमर के लिए गैस की कीमत 2000 रुपए, कमर्शियल सार्फिन के लिए 3900 रुपए, सीमेंट इंडस्ट्री के लिए 4400 रुपए और CNG सार्फिन के लिए गैस की कीमत 3600 रुपए फी MMBTU मुकर्रर की गई है। दूसरी जानिब नेपरा ने सितंबर के लिए फ्यूल कास्ट एडजस्टमेंट की मद में बिजली 40 पैसे फी यूनिट महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सार्फिन से इजाफी वसूलियां नवंबर के बिल्स में की जाएंगी। ताहम इजाफे का इतलाक लाइफ लाइन और के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर नहीं होगा। और अभी आपको बताएं कि लाहौर ट्रैफिक पुलिस की ऐप लापता बच्चों को वर्सा से मिलाने का जरिया बनने लगी है। मेरा प्यारा ऐप के जरिए 9 साल से लापता बच्ची घर पहुंच गई।
लाहौर ट्रैफिक पुलिस ने ऐप के जरिए लापता बच्चों की तलाश शुरू कर दी। मेरा प्यारा ऐप टीम ने 9 साल कबल बिछड़ जाने वाली 15 साला फजीमा को अपनों से मिलवा दिया। टीम गुमशुदा बच्चों और अफराद का डाटा लेने के लिए चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो दफ्तर पहुंची। ब्यूरो में 9 साल से मुकीम सियालकोट की लापता लड़की से अहलकारों की मुलाकात। भाई और दीगर रिश्तेदार फजीमा को देखकर खुशी से निहाल हो गए। मुझे पता चला, मैं इतनी खुश हुई, मैंने खाना भी नहीं खाया था, मुझे इतनी खुशी हुई थी, मुझे अब रोना भी आ रहा था कि हमारी बहन इतनी देर से मुझे मिली है। फजीमा की खुशी का भी कोई ठिकाना न था। कहा, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं फिर अपनों के साथ हूँ। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। इस बात की भी शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी कि लगता है फजीमा मर गई होगी, ये होगी। नहीं, इन्होंने उम्मीद नहीं तोड़ी है, मैंने भी उम्मीद नहीं तोड़ी कि मुझे पता था मेरे घर वाले होंगे इंशाल्लाह ताला। सीटीओ लाहौर का कहना है कि गुमशुदा बच्चों के व्हाट्सएप मेरा प्यारा ऐप का विजिट करें ताकि उनके प्यारे उनको मिल सकें। कैमरामैन नुमान के साथ मुदस्सर हुसैन, लाहौर न्यूज़। LD इंतज़ामिया जायदादों का तखमीना लगाए बगैर फ़रोख्त करने में मसरूफ़। माजी में जायदादों का तखमीना लगाने के लिए कई मंसूबे बनाए गए, फंड्स मुख्तस करने के बावजूद जायदादों का तखमीना न लगाया जा सका। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे ज़ैनुल आबदीन। LDA इंतज़ामिया के पास कितनी मालियत की जायदादें हैं? 48 बरस गुजर गए मगर तखमीना नहीं लगाया जा सका। LDA इंतज़ामिया जायदादों का तखमीना लगाए बगैर ही फ़रोख्त करने में मसरूफ़। जायदादों का तखमीना न होने से LDA ज़ाती वसाइल से मनसूबे शुरू करने में तज़ब्ज़ुब का शिकार। माजी में जायदादों का तखमीना लगाने के लिए कई मनसूबे बनाए गए। गुज़िश्ता 5 बरसों में फंड्स मुख्तस करने के बावजूद जायदादों का तखमीना नहीं लगाया जा सका। LDA का शोबा हाउसिंग को असासों की फहरिस्त बनाने का हुक्म दिया गया। वर्किंग ग्रुप को जायदादों की मुकम्मल तफसीलात फराहम करने की हिदायत। LDA का शोबा हाउसिंग असासों का तखमीना लगाने में नाकाम। अथॉरिटी ने निजी फर्म की खिदमात भी हासिल की लेकिन जायदादों का तखमीना लगाने में कामयाबी नहीं मिली। LDA इंतज़ामिया का कहना है कि निजी फर्म्स जायदादों के तखमीने पर काम कर रही है जबकि LDA भी इसका रिकॉर्ड मुरतब करने पर मसरूफ है। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबदीन, लाहौर न्यूज़।